lecture number 2 of chapter 12, that is stock exchange. We had started with chapter 12 of your state board curriculum, stock exchange, where we have finished with one lecture wherein we talked about what is a stock exchange and what are the features of stock exchange, उसके नए नक्श कैसे हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या उसमें होता है. We all had seen this in lecture 1. Now, without wasting much time, let's jump into lecture 2 of stock exchange. We will be seeing the functions of stock exchange. So students, another 5-mark question which can be asked in your board exam is define stock exchange and state the functions of stock exchange, right? So let's see it one by one. On the screen you can see the first function of stock exchange is mobilization of savings. We all know mobile means movement, right? So यहाँ हम बात कर रहे हैं कि stock exchange जो कि financial market का एक बहुत ही important component है, हिस्सा है, उसका पहला function है कि वो mobilization of savings में help करता है. Mobilization of savings from which sector to which sector? Come on, from the surplus sector, people like you and me, the investors, to the deficit sector, people like corporates, government, semi-government bodies, जिनको पैसे की ज़रूरत है. So here it's written that stock exchange encourages small and big investors. Small like people like you and me, big, even corporate companies to invest as it provides a ready, organized and regulated market. भैया ये market है, but इस market में आपको सब कुछ तैयार मिलेगा, बहुत organized है, आपको ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, and it's regulated by SEBI, right? So ऐसा market का provide आपको जो provision है ये कौन दे रहा है? Stock exchange. Why is this provision given? For buying and selling security. So this is the first function, that is mobilization of savings. Second function talks about capital formation. यार ये हम सबको पता है कि जब investors से पैसा companies के पास आता है, surplus sector से deficit sector में पैसा आता है, तो उस पैसे को corporate houses यूज करती है इन एक्सपेंशन, ग्रोथ और सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स. और जो पैसा ये कंपनीज इस प्रोडक्टिव यूज में डालती है उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल इज दैट मनी व्हिच इज required to start a business, to run a business, to grow a business, to expand a business. और ये पैसा कहाँ से मिला? ये पैसा सरप्लस सेक्टर से मिला. किसकी मदद से मिला? स्टॉक एक्सचेंज की मदद से मिला. इसलिए हमने कहा the second function of stock exchange is capital formation. So let's read the point. Investors are attracted due to good returns. है ना? अगर वही 1000 रुपए मेरी मम्मी चावल के डब्बे में छुपा कर रखती है, right? जो जनरली हम सब की मम्मियों ने किया है. All our mothers have been doing it since ages, right? कपड़े के तय के अंदर पैसे, that is savings, right? But 2 साल बाद 3 साल बाद भी अगर उस पैसे को निकालते हैं तो वो उतना ही रहेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा. But now when I or you can explain your mother that mom, if we invest in financial markets, your money will grow, your money will multiply. So investors are attracted to good returns and कैपिटल अप्रिसिएशन होता है. कैपिटल अप्रिसिएशन मैंने लेक्चर 1 में बताया है कि अगर मैंने किसी शेयर, कंपनी के शेयर को 100 रुपीज में लिया, सो डेलिबरेटली और डेफिनेटली आई विल एक्सपेक्ट कि वो 100 रुपीज 200 हो, 300 हो, यानी जो मेरा इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न तो मैं एक्सपेक्ट करती ही हूँ, बट मैं उसके साथ साथ उस मार्केट, उस असेट की मार्केट वैल्यू में अप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट करती हूँ, राइट? सो कॉर्पोरेट्स
जो डेफिसिट सेक्टर है, जो बोरोअर्स हैं, दे कैन इजीली रेज फंड्स बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर ले लो, डिबेंचर ले लो, बॉन्ड्स ले लो, डिपॉजिट्स ले लो, सो दैट उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स ऑफ फंड्स टू बी मेट बाय डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। यानी बोरोअर एंड लेंडर दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स मैच होती है, वो कौन करवा रहा है मैच, दोनों का इंटरमीडिएरी कौन है, स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो फर्स्ट फीचर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, क्लास हमको साथ साथ में लर्न करना है, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमको लर्न करना है और लिखना है। सो फर्स्ट फीचर वी ऑल, और फर्स्ट फंक्शन वी ऑल नो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। क्योंकि मोबिलाइजिंग सेविंग्स का मोबिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प हुई। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। अब राइट, थर्ड पॉइंट सेज कि इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर, मुझे अगर पता लगे कि यार मेरे 100 रुपए का 120, 130, 150 पैसा हो सकता है, my money can multiply, my money can grow if I invest in stock exchange, if I invest in financial market, so definitely I will try to save more and invest more. वैसे इंडियंस में सेविंग्स की हैबिट तो बचपन से ही है, सो बस इस हैबिट को थोड़ा और पुश मिलता है because you get more returns when you invest in stock exchanges, right? So as attractive opportunities of investments are available, इसलिए आपको savings और investment habit में promotion मिलता है, right? The fourth function talks about because of stock exchange there is better allocation of capital. Definitely जो पैसा पहले कपड़ों के तय के नीचे पड़ा रहता था, जो पैसा घर के आटे के डब्बे में या चावल के डब्बे में रहता था, वो किसी के काम नहीं आता था। जिसने छुपाया, यस, उसको एक मेंटल पीस होता था कि मेरे पास पैसा है, बट उस पैसे का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होता था। बट क्योंकि ये फिनेंशियल मार्केट ने इन दोनों एंड्स को मिलाया, सो उस पैसे का बेटर एलोकेशन हुआ। इन्वेस्टर्स फंड्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल चैनल्स। मेरा पैसा मैं किसी कंपनी को दूंगी तो वो कंपनी उसको सही यूसेज में लाएगी, क्योंकि अगर वो सही यूसेज में लाएगी तो मुझे रिटर्न्स देने की काबिलियत उसमें आएगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, better allocation of resources. Now these resources means money, savings is possible, right? पहला देखते हैं फिर से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुआ। क्योंकि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुआ तो कंपनीज का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, साइमल्टेनियसली इन्वेस्टर्स को आपने एक्साइट किया, आपने प्रमोट किया कि भैया आप सेव करो और इन्वेस्ट करो और हम आपको रिटर्न देते हैं। एंड नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट दैट इज बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, राइट? सो 4 functions we are done. Let's see the 5th function. 5th function talks about स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। We have been talking this, we have been listening about this from lecture 1। मैंने जब से आपको बताया है चिल्ला कर कि भैया इन्वेस्टर के साथ में कुछ भी बुरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज के फादर की है ना। हु इज द स्टॉक फादर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? सो स्टॉक एक्सचेंज कि फादर ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो ही करने हैं। रूल के मुताबिक दे हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स सी ओनली, अब ये जो
इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है, ये कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये हमने कल फीचर में भी देखा था। क्योंकि आप किसी एरी गैरी कंपनी को इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए अलाउ नहीं करोगे, यानी कि जिसको इन्वेस्ट करना है उसको भी मेंबर बनना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का। दैट मीन्स सम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैव टू बी फॉलोड। जिसको बोरो करना है पैसा उसको भी अपने आप को लिस्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड। सो ये चीज मैं एक बता दूं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये बहुत आसान नहीं है। यानी हर एरी गैरी कंपनी, हर एरा गैरा नत्थु कैरा ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही लिस्ट कर सकता है अपनी कंपनीज को, बिकॉज these rules and regulations, these norms are quite strict to follow, right? So क्योंकि only listed companies, here a point, only listed companies, now listed companies means those companies which are included in the trading list, जिसको permission मिली है stock exchange से, only listed companies are allowed to trade and they have to operate within the strict guidelines laid down by SEBI, and that is how the interest of investors is protected, right? Class, I'm trying to give you the point and I'm trying to give you the explanation also, right? So here we are done with this function. Next function पे चलते हैं। Next function है liquidity. Liquidity यानी कि your asset, your investment can be converted into cash. आपका इन्वेस्टमेंट, आपका asset, आप कितने जल्दी, कितने easily कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर ये एक शेयर है तो क्या आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और बदले में कैश ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसको खरीदने के लिए मेरा जैसा कोई और इन्वेस्टर प्रेजेंट होगा उस मार्केट में जिसके पास पैसा होगा, राइट? सो वो इन्वेस्टर ये लेगा और बदले में मुझे पैसा देगा। तो नाउ मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ हुई लिक्विडिटी, राइट? आई हैव आल्सो टेकन वन एग्जांपल ऑफ हनी एंड वाटर। दोनों लिक्विड हैं, बट हनी और वाटर को अगर मैं एक ड्रॉप साइमल्टेनियसली एक सरफेस पे डालती हूँ तो वाटर मूव्स फास्ट एंड हनी मूव्स स्लोली। कहने का मतलब है सम असेट्स लिक्विड सम होंगे, सम असेट्स आर हाईली लिक्विड यानी वो तुरंत कैश में कन्वर्ट होते हैं, सम असेट्स आर लिक्विड यानी वो कैश में कन्वर्ट हो गए बट तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ गोल्ड की, सो गोल्ड इज हाईली लिक्विड, तुरंत आप ज्वेलर के पास जाओ एंड गेट द कैश। बट इफ आई टॉक अबाउट लैंड, सम प्रॉपर्टी, वो भी कैश में कन्वर्ट होता है बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा पेशेंस चाहिए। सो यहाँ लिक्विडिटी ऑफ असेट्स में टू कंसेप्ट्स होते हैं, एक है हाईली लिक्विड एंड एक है जस्ट लिक्विड। सो यहाँ पर व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू, आई मीन टू एक्सप्लेन यू दैट कि फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में हमने कहा कि यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है यानी आप अपने असेट को किसी को भी बेच सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज provides ready market for sale and purchase of securities. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो कोई ना कोई बायर एंड सेलर की रिक्वायरमेंट मैच हो ही जाती है। इसलिए हमने कहा कि दिस प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स। किस चीज का अश्योरेंस? दैट द इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी मुझे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ये अश्योर्ड है एट द बैक ऑफ माय माइंड कि आज मेरे पास पैसा है, आई एम इन्वेस्टिंग इन एन इन्वेस्टमेंट मे बी फॉर 2 years, बट इफ एनी अनसर्टेनिटी कम्स एंड इफ आई एम इन नीड ऑफ मनी, आर देयर ऑप्शंस अवेलेबल कि मैं इस
को देकर कैश ले सकती हूँ। तो यस, स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है सो बी अश्योर्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ऑफ कन्वर्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। प्लीज सी दिस पॉइंट। और आपको कैश में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मीडियम या शॉर्ट में करना है, सो वो भी ऑप्शन है, कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनटू शॉर्ट टर्म or medium term whenever they want. Whenever they want means whenever the investors want. So भैया स्टॉक एक्सचेंज आपको सारे ऑप्शन देता है। यानी आप ये मत सोचिए कि एक बार मैंने पैसा डाला किसी इन्वेस्टमेंट में तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। नो, योर मनी कैन बी इजीली डिसइन्वेस्टेड, निकाला जा सकता है by various options available in stock exchange, and therefore we say liquidity function is given by stock exchange. Moving ahead, कहते हैं कि stock exchange का फंक्शन है of providing scope for speculation. Now स्पेक्यूलेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में अच्छे से समझा रही हूँ। फिलहाल आप इतना समझेंगे कि स्पेक्यूलेशन इज सट्टेबाजी, अंदाज लगाना कि कल रिलायंस के शेयर्स के भाव बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। सो सट्टेबाजी एक हद तक या स्पेक्यूलेशन एक हद तक सही है, इसलिए हमने कहा कि टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन। The next point talks about that stock exchange is providing scope for speculation. Now what is speculation? Speculation means अंदाज, ज्योतिषी करना, फ्यूचर को अज्यूम करना, जिसको हम कह सकते हैं सट्टेबाजी भी, राइट? बिकॉज जनरली हम कौन सा मैच आईपीएल में जीतेगा, कौन सा हारेगा, दिस इज ऑल प्रेडिक्शंस, राइट? सो स्टॉक एक्सचेंज अलाउज प्रेडिक्शंस, यानी यहाँ पर इतना परमिशन है कि इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज एंड ब्रोकर्स दे कैन प्रेडिक्ट कि बिकॉज रिलायंस को ये टेंडर मिला है तो शायद कल उनके शेयर्स बढ़ेंगे, राइट? एक्सपर्ट्स होते हैं, आई डोंट नो, कभी टीवी चैनल अगर चेंज करते करते यू हैपन टू गो एनी न्यूज चैनल जहां पर ऐसे खिड़कियों में सम शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, एंड अगर किसी बिग शॉट कंपनी जैसे कि रिलायंस, टाटा में अगर कुछ भी मैनेजमेंट में कम ज्यादा होता है सो दे डायरेक्टली प्रेडिक्ट कि ओके इसकी वजह से द शेयर्स प्राइस कैन इंक्रीज, और इसकी वजह से आई स्टिल रिमेंबर जब रिलायंस में आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी व्हेन द टू ब्रदर्स सेपरेटेड आउट, राइट? सो व्हेन द टू अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी सेपरेटेड आउट, दैट टाइम जो रिलायंस के शेयर्स थे कंपनी की, दे वर एट द हाईएस्ट पीक ऑफ फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते थे, बिकॉज every speculator, every predictor, you know, experts of stock market, ये predict करते थे, अच्छा ये हुआ, अब शेयर का प्राइस गिरेगा, ओके। सो जब शेयर का प्राइस गिरता है तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो जैसे ही शेयर का प्राइस गिरता है वो बहुत से शेयर्स खरीद के रख लेते हैं, राइट? ओके, 10 रुपए में शेयर मिल रहा है ना, 1000 शेयर लेकर रख लो, with a view, with an expectation कि जैसे ही 10 रुपए का शेयर थोड़ा सा बड़ा होगा 12, 15, 16 में मैं बेच दूंगी, राइट? सो 10 का शेयर अगर मैं 15 में बेचती हूँ तो जो 5 रुपीज पर शेयर है दैट इज माई इनकम, राइट? सो ये सब स्पेक्यूलेशंस, ये सब प्रेडिक्शंस स्टॉक मार्केट में अलाउड है, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर
healthy speculation. You can't do a speculation to a personal level of a company. आप उसके shares के बारे में speculate करिए, but not to the personal director level, the personal management level, ताकि उनसे कंपनी के बिजनेस को हार्म नहीं होना चाहिए. So stock market ये चीज को अलाउ करता है. क्यों अलाउ करता है? क्यों वो प्रेडिक्शंस को अलाउ करता है? भैया अगर अलाउ नहीं करेगा तो वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट का ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो सिर्फ एक्सपर्ट्स या ऐसे स्पेक्यूलेटर्स की सुनकर इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? राइट? इफ शेयर मार्केट का प्राइस नहीं गिरेगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो मैं शेयर्स कब खरीदूंगी? राइट? सो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है प्रेडिक्शन, एंड स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर हेल्दी स्पेक्यूलेशन, हेल्दी प्रेडिक्शन, नॉट एन अनहेल्दी और अनफेयर प्रेडिक्शन. यानी एक ही कंपनी के बारे में आप बुरा बोल रहे हैं या एक ही कंपनी को फेवर कर रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड. सो ऑल स्पेक्यूलेटर्स हैव टू बी फेयर in the game of speculation, right? So moving to the next feature of stock exchange, feature कहता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ये एक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का कि जो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज है कि ये शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए और क्या ये प्राइस सही है या गलत है, ये सब का जो डिसीजन है ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है. कैसे होता है? सिक्योरिटीज आर वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. ये हम सबको पता है कि इशू करते वक्त, दैट मींस प्राइमरी मार्केट में प्रमोटर या कंपनी रेट डिसाइड करती है, बट सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाते हैं, तो उस शेयर या उस इन्वेस्टमेंट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, मार्केट फोर्सेस पर उसका प्राइस डिटरमाइंड होता है. कहने का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज में कितना शेयर कितने में बिकेगा ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड नहीं करता है. ये जो वहां लोग हैं जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल, अभी तो कॉमन सेंस है कि जो कंपनीज प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो रिटर्न देने की अच्छी कैपेसिटी रखते हैं, जो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते हैं, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उनकी वैल्यू भी हाई होगी. सो सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज are valued higher. Why? Because there is more demand. अच्छी चीज तो आप ज्यादा डिमांड करोगे ही, और जब ज्यादा डिमांड होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली राइज ऑफ प्राइस होता है. इन्वेस्टर्स कैन नो, मुझे समझ जाएगा कि अच्छा इस सिक्योरिटी, इस शेयर का वैल्यू ज्यादा है, यानी इसका डिमांड ज्यादा होगा, यानी ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसमें इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे फायदा होगा. So investors can know market value of the investment. It's very transparent. Stock exchange में किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट का, शेयर का मार्केट वैल्यू जानना is very easy, right? ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. Creditors can estimate the credit worthiness of the company. Credit worthiness यानी भैया आप डिबेंचर्स के तौर पे, डिपॉजिट्स के तौर पर कंपनी ने हमसे लोन तो ले लिया, बट क्या वो हमको लोन देने की कैपेसिटी रखती है, रिटर्न के तौर में इंटरेस्ट देने की कैपेसिटी रखती है? तो ये सब चीजें स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है. कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स से आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस निकाल सकते हैं, आप मार्केट वैल्यू से जान सकते हैं कि इस कंपनी का डिमांड ज्यादा है, कम है, एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स प्राइसिंग फंक्शन is a function which talks about the market price, the credit worthiness, the demand and market value of the investments. Right? बढ़े आगे. Next point कहता है stock exchange का एक function, please understand,
स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन है कि इट एक्ट्स एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड? पहले हम ये वर्ड समझते हैं। बैरोमीटर जनरली मिलीमीटर, किलोमीटर, हम कोई चीज को मेजर करना हो तो हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर मेजरिंग इट। व्हेन वी मेजर स्पीड वी यूज स्पीडोमीटर, राइट? सो ऐसे ही अगर इकोनॉमी का प्रोग्रेस हो रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है, ये मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी इंस्ट्रूमेंट बना है जिसका नाम है इकोनॉमिक बैरोमीटर। या सोच लो, आई रिपीट, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही इकोनॉमी के स्पीड को, ग्रोथ को, डाउनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इतना क्लियर है? अब व्हाट इज द पॉइंट से? पॉइंट कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी स्टॉक एक्सचेंज से हमें ये समझेगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो कैसे? स्टॉक एक्सचेंज is a reliable measurement to measure the economic condition of a country। एक reliable है जिस पे हम any time विश्वास कर सकते हैं। It is very transparent। कैसे? rise or fall in share price indicates the boom, यहाँ पर S होना चाहिए, राइट? indicates the boom। अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं दैट मीन्स देयर इज तेजी, देयर इज बूम इन द इकोनॉमी, सब लोग का ग्रो हो रहा है, राइट? बट अगर शेयर मार्केट गिर रहा है दैट मीन्स मंदी है, रिसेशन है ऑफ द इकोनॉमी। सो इन सिंपल वर्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज इक्वल्स टू द पल्स ऑफ इकोनॉमी। धड़कन बढ़ रहा है इकोनॉमी की, कम हो रहा है, which is also equal to the economic mirror। अगर इंडिया की शक्ल देखनी है, इकोनॉमिक शक्ल, नॉट द ज्योग्राफिकल शक्ल, अगर इंडिया की द इकोनॉमिक शक्ल, द इकोनॉमिक कंडीशन, सो many experts do go and refer the stock exchange के rates, right? Recently during the corona pandemic, there were many theories, many judgments, many predictions done by various agencies of the world। Moody's ने कुछ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया के जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया था। So do read such things, and if you want we can discuss it in the live sessions also, right? So कहने का मतलब है इंडिया या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन को अगर जानना है, इकोनॉमी की कंडीशन को मेजर करना है, नापना है, जैसे हम थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, फीवर नापते हैं, वैसे इकोनॉमी की कंडीशन को मेजर करना है। सो स्टॉक एक्सचेंज इज द बेस्ट ऑप्शन एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, द पल्स ऑफ इकोनॉमी और द इकोनॉमिक का मिरर, राइट? Moving on to the last function of stock exchange is stock exchange contributes to economic growth। Well, we all know that जब पैसा surplus सेक्टर से डेफिसिट सेक्टर में आता है तो इकोनॉमी के इस सेक्टर में जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो उस पैसे को प्रोडक्टिव यूज लाते हैं। When they are using this money maybe for growth, expansion or new ventures, it generates employment। लोगों को employment मिलता है। When people get employment, they get food to eat and good clothes to wear। So when you have good to eat, good to wear, your standard of living raises। When the standard of living of the people raises, indirectly
the economic growth happens. So this is how it says that investors invest with a motive to get good returns. अब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है with an expectation कि यहाँ से good returns मिलेगा, तो उस कंपनी के भी ऊपर एक बोझ आता है कि भैया लोगों ने इन्वेस्ट किया है so that they want good returns, so I have to work hard so that I can give good returns. So companies try to invest in most productive investment projects. They work hard, and therefore this leads to capital formation and economic growth. So class, here we end up with the functions of stock exchange. Before moving to the another topic, let me tell you that in the question it's asked, define stock exchange and state the functions of stock exchange. So you have to write the definition given by Skera, and then at least be ready with 6 to 7 functions of stock exchange as per your convenience of learning if asked for 5 marks, right? So let's move on to the next topic of this chapter. Before I jump into the next topic of the chapter, there are few terms which I want you to understand, because these terms will be discussed in the coming topic. The first term is market capitalization. What is market capitalization? ये word जब आपको आएगा तो आप इसको क्या समझेंगे, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ. Right, so market capitalization का जो फॉर्मूला है वो क्या है? The total value of share of a company. In fact, so market capitalization का एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या है? Total value of a company's outstanding shares or the number of shares issue. कंपनी ने जितने shares issue किए हैं, maybe 1 lakh shares. It is multiplied by the current market price. अब current market price कहाँ से मिलेगा भैया? स्टॉक एक्सचेंज से. So मान लीजिए 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं एंड उसको मार्केट प्राइस है मे बी 10 rupees. So 1 lakh into 10 is 10 lakh is the current market capitalization figure of that company. So what does this indicates? It indicates the worth of the company. उस कंपनी की worth क्या है, value क्या है. This is known by market capitalization, right? So आपको इतना याद रखना है कि market capitalization means something which can tell us about the worth of that company. इसको calculate कैसे करते हैं? जितने shares company ने issue किए हैं, we multiply it with the current market value or current market price. The second term which I want you to tell is insider trading. Insider trading. What is this? Trading of a public limited company security by individual with access to non-public information of the company. In short, कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन which is confidential and which is not supposed to be shared with the public. I repeat, certain information of the company which is confidential, some secrets which are confidential and which was not supposed to be shared by the company to the general public. इसलिए हमने कहा है non-public information which was not made public. अब ऐसी information को एक individual ने, एक इंसान ने use किया for what? For trading shares of a public limited company. Means उस इंसान ने उस information का गलत फायदा उठाया. अब ये जो इंडिविजुअल है ये तो कंपनी के अंदर का आदमी हो सकता है या कंपनी के कोई बहुत क्लोज अटैच्ड हो सकता है जिसने उसको जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है which he or she is misusing it just
trade, just to attract investors or just to sell the securities of the company. Is this correct? Well, it's not correct and therefore this is illegal. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी पब्लिक को बताना चाहती है वो सभी पब्लिक को कंपनी शेयर करेगी। ऐसी इंफॉर्मेशन कि हम इस पब्लिक को बताएंगे और इस पब्लिक को नहीं बताएंगे, ऐसा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। बट इफ समवन इज यूजिंग दिस टैक्टिक to differentiate that I will tell this information to you, so please purchase these shares. This is illegal. This is very fraud practice and this is unfair to other investors. Definitely. Why? Because who do not have access to this information, it's unfair with them. भैया हमने सभी ने कंपनी की शेयर्स में इक्वल पैसा देके इन्वेस्ट किया है, तो भैया आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल इंफॉर्मेशन क्यों मिलेगी? So this is insider trading, which is an illegal practice, right? The third term which I would like to discuss with you is, वैसे मैंने speculation prediction पे already बात की है during functions, but यहाँ मैं थोड़ा उस पे और डिटेल में जाना चाहती हूँ। Speculation generally in stock exchange जो होता है वो healthy होता है, सट्टेबाजी, gambling. So generally gambling is not healthy, it's not generally promoted, but on stock exchange the speculation is promoted to certain extent by the stock exchange itself. Why? क्योंकि हमने देखा है उससे liquidity मार्केट में होती है। अब speculation समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि buyers and sellers at stock exchange undertake two types of operations. जो भी लोग खरीदार या बेचने वाला स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है वो दो ही ऑपरेशंस यानी दो ही बेसिक काम करता है। नंबर वन, या तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आएगा, सीरियसली उसको इन्वेस्ट करना है, उसको अपने असेट्स पे रिटर्न लेना है, या वो स्पेक्यूलेशन के मोटिव से आता है। तो इन्वेस्टर यानी कि वो जो इन्वेस्ट करता है उसको हम कहेंगे इन्वेस्टर, और वो जो स्पेक्यूलेट करता है उसको हम कहेंगे स्पेक्यूलेटर, राइट? सो इन्वेस्टमेंट के तौर से आता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेगुलर इनकम, मंथली या ईयरली क्वार्टरली रेगुलर इनकम मिलते रहे, एंड पॉसिबली अगर पॉसिबल है तो मेक सम लॉन्ग टर्म गेन ऑन अकाउंट ऑफ प्राइसेस इन फ्यूचर, या प्राइस राइज इन फ्यूचर। दैट मीन्स रिटर्न तो मिलना चाहिए। आपने अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आपको बदले में डिविडेंड मिलते रहना चाहिए, ये तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बट अगर 100 रुपए का शेयर लिया हुआ फ्यूचर में 200 का होता है तो किसको नहीं मांगता है, ये सबको चाहिए, राइट? सो पॉसिबली प्राइस राइज से अगर कोई बेनिफिट हो तो व्हाट बेटर देन दैट, बट फर्स्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गेट रिटर्न्स, राइट? ये जो काम है वो है इन्वेस्टमेंट का, और ये कर कौन रहा है? इन्वेस्टर, ठीक है? अभी जो दूसरा काम है स्पेक्यूलेशन का, ये कौन कर रहा है भैया? स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर का सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज उठाना। I repeat, the sole objective of speculator is to take advantage of price difference, जैसे कि buying securities now यानी अभी प्राइस कम है किसी शेयर का, फॉर एग्जाम्पल, सो उस टाइम पे स्पेक्यूलेटर ने सिक्योरिटीज को क्या किया? सस्ते में कम प्राइस पे बाय कर लिया, खरीद लिया। क्यों? टू सेल देम इन फ्यूचर एट हायर प्राइसेस। सो 10 का शेयर लिया और 10.5 या 11 हुआ
तो वो तुरंत बेचता है। लेट मी टेल यू, स्पेक्यूलेटर्स इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, यानी 10 का लिया, हाफ एन आवर में अगर 10.15 रुपीज भी हुआ तो 0.5 से भी वो प्रॉफिट लेकर पर शेयर सेल शेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ही प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज उठाना है, अपॉर्चुनिटी लेना है। सो पहला सिचुएशन समझा, दे आर बाइंग सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस, व्हाई? जस्ट टू सेल देम एट हायर प्राइस इन फ्यूचर। देन दूसरा क्या हो सकता है, अगर सेलिंग देम नाउ, अब प्राइस बढ़ रहा है किसी का, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सेल कर दो। जो आपने 10 रुपए का शेयर लिया था वो 10.5 में 11 में आपने सेल कर दिया। सेलिंग देम नाउ एट हायर प्राइस, बट यू विल गेट मनी एंड यू विल बाय दैट और बाय दीज शेयर्स इन फ्यूचर when the prices of these shares will be lower। यानी जब सस्ता है खरीद लो, जब महंगा है बेच दो, पैसा आ गया, जब सस्ता हुआ फिर से खरीद लो, जब महंगा है बेच दो। So this is how the speculators do। Their motive is not investment, their motive is not having stability or security, their motive is earning money by price difference, right? So class, इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क पोर्शन कम होता है, स्टेबिलिटी पोर्शन ज्यादा है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेक्यूलेशन, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेक्यूलेशन द रिस्क कंपोनेंट इज मोर। नाउ वी ऑल नो रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड, तो रिस्क ज्यादा है तो यहाँ रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है, एंड दैट इज व्हाई वी जनरली हियर कि स्टॉक एक्सचेंज में भैया जुआ खेला जाता है, गैम्बल होता है, या वहां तो सट्टेबाजी होती है। तो दैट सट्टेबाजी इज नॉट, दिस इज व्हाट इज द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो अब जब ये तीनों टर्म्स के बारे में हम क्लियर हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन, लेट्स मूव ऑन टू the two major stock exchanges in India. There are two major stock exchanges in India, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange, let's talk about Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange and NSE के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि एग्जाम्स में आपको इंडिविजुअली 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है। So be ready with the individual short notes of BSc and NSC. Bombay Stock Exchange, you can see the photograph. This is how Bombay Stock Exchange looks. So how you have to learn, I have tried to jot out in points. It was set up in 1875. It is also called as one of the oldest stock exchange of India. ये सबसे पुराना stock exchange है। जब 1875 में ये सेटअप हुआ था तो उसका नाम BSC नहीं था, उसका नाम था The Native Share and Stock Brokers Association. So how you are learning? कब सेट हुआ था? 1875 में। क्या नाम था उस टाइम पर? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, बट नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड देयरफॉर द नेम इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेयर इज इट लोकेटेड? द लाल स्ट्रीट, दैट इज इन मुंबई। ये पूरे एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। It is the first listed stock exchange in India. I repeat, Asia का first stock exchange है, but India का oldest and first listed stock exchange है, and 11th largest stock exchange in the world. 11th largest stock exchange in the world in terms of market capitalization. हमने अभी देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो किस टर्म्स में ये लार्जेस्ट है?
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, इनफैक्ट यहाँ पर 5000 कंपनीज लिस्टेड है, राइट। सो इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है तो उन सब कंपनी के शेयर्स एंड एवरीथिंग गेट्स ट्रेडेड, एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दिस इज द 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड विद इट, कितनी है? अप्रॉक्स 5000। 1995 में BSE ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को बोल्ट कहते हैं, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, बॉम्बे B ऑनलाइन OL ट्रेडिंग। अब इसके फीचर्स क्या है? ये ऑटोमेटेड है, स्क्रीन बेस्ड है एंड इट्स द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ BSE। यानी अगर आपको बॉम्बे जाकर दलाल स्ट्रीट पर जाकर नहीं ट्रेडिंग करना है, नागपुर में बैठकर करना है, सो व्हाट स्क्रीन यू ऑल कैन सी इज बोल्ट। इस किस वेबसाइट से आप जा सकते हैं? BSE webexco.in। सो इट्स रिटन, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड exchange based internet trading system of BSE which is called as BSE webexco.in, right। BSE का इंडेक्स, ना व्हाट इज इंडेक्स? जैसे हम बुखार, फीवर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, वैसे ही कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट टूल होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स, which I have already discussed in my classes, but if time permits I will be taking a separate session on index कि इंडेक्स बनता कैसे है, कैसे स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज लिया जाता है एंड ऑल। सो अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के उतार चढ़ाव को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर या जो मीटर है उसको कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। BSE के इंडेक्स को यानी BSE के थर्मामीटर को कहा गया है सेंसेक्स। अब ये बना कैसे है? इट इज मेड ऑफ 30 कंपनीज। कैसी है ये कंपनीज? लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज। BSE पे जो सबसे 30 बड़ी कंपनीज है, जो सबसे ज्यादा एक्टिवली शेयर्स एंड जिनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, उन 30 कंपनीज का स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज लेकर जो मेजरमेंट बनता है उसको कहते हैं सेंसेक्स, ठीक है। एंड सेंसेक्स वाज लॉन्च्ड इन 1986। आई रिपीट क्लास, 1875 में बना with the name of Native Share and Stock Brokers Association. Now it's a corporate entity registered under Companies Act. कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट में। अब फर्स्ट एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है एंड ओल्डेस्ट भी है, और पूरे वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम या मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज लिस्ट है अराउंड 5000। 1995 में BSE ने अपना फिजिकल सिस्टम को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट किया। इस सिस्टम को बोला जाता है बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। इसके फीचर्स क्या है? वो ऑटोमेटेड है, स्क्रीन बेस्ड है एंड दैट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। अब इसका कोई URL, कोई वेबसाइट होगा तो वेबसाइट है BSE webexco.in। सो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इंटरनेट ट्रेडिंग, राइट। BSE का सेंसेक्स, BSE के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स इज मेड ऑफ 30 कंपनीज। कौन सी 30 कंपनीज? जो लार्जेस्ट है BSE पर और जिसके सबसे ज्यादा एक्टिवली शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। एंड ये सेंसेक्स बना कब था? 1986 में, ओके। 1875 में ये बना और 1986 में ये बना, ठीक है। ये याद रखना सभी लोग। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
This is how it looks, a very beautiful building in Mumbai. So if you visit Mumbai, बाहर से तो जाकर NSC देखकर आ ही सकते हैं. And in fact काफ़ी सारे लोगों का सपना है to work in this building because I heard that beautiful infrastructure and beautiful facilities given to the employees who work over here. So crossing fingers कि आप में से कोई जल्द ही यहाँ पर बैठकर एम्प्लॉयमेंट फुलफिल करेगा, अपना ड्रीम पूरा करेगा. सो मूविंग ऑन, NSC. NSC was set up as a company. NSC was set up as a company in 1992 by a group of leading financial institutions. इसके promoters कौन है? In short, we are financial institutions. से ये कब बना था? 1992. ये कब बना था? 1875 में. यानी BSc पहले बना, NSC बाद में आया. ठीक है? But it was recognized as a stock exchange in 1993. ठीक है? Under SCERA, Securities Contract Regulation Act. ठीक है? It started trading activities in 1994. Setup हुआ 1992 में, stock exchange का permission मिला 1993 में और trading काम चालू किया 1994 में. It is the largest and most modern stock exchange in India. All online modern facilities are available on NSC. Definitely it's located in Mumbai. It's the first stock exchange in India to provide modern, fully automated, screen-based electronic trading system to the investors. ये पहले था और इसके पीछे पीछे फिर BSc ने भी स्टार्ट किया था. अब Sensex was the index of BSc, Nifty is the index of NSC. इसको Nifty 50 भी कहते हैं. क्यों 50 कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 50 कंपनीज से निफ्टी बना है, वहां 30 कंपनीज से सेंसेक्स बना था. सो निफ्टी इज मेड ऑफ 50 लिस्टेड कंपनीज, जिसमें से 30 कंपनीज BSc की है प्लस 20 कंपनीज ऐसी है जो BSc पे लिस्टेड ना हो, which are the most recent companies of recent sectors, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर. सो 30 BSc की प्लस 20 नवी, इस हिसाब से 50 कंपनीज से जुड़कर निफ्टी बनता है. एंड इट वाज क्रिएटेड इन 1996. ओके, व्हेन वाज सेंसेक्स? 1986. 1996. इट्स सो इजी टू रिमेंबर. ये 86 और ये 10 साल बाद 96. इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं. सो यहाँ हमारा NSC और BSc पर शॉर्ट नोट खत्म होता है. लेट्स कम टू द लास्ट short note of this chapter. SEBI, Securities Exchange Board of India. Father of securities market is SEBI. आपके घर का जो हेड है is your father. आपके घर में क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे is decided by the father. आपके घर में जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा उसको क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है is decided by the father. And therefore सेबी क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट का फादर है, तो क्या फॉलो होगा, क्या फॉलो नहीं होगा, जो फॉलो नहीं करेगा उस पर क्या पेनल्टी है, ये सब सेबी का काम है. सो देखते हैं सेबी क्या है. इट्स अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. दिस इज हाउ द बिल्डिंग ऑफ सेबी लुक्स. इट्स अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. It's a regulator of all stock exchanges in India. NSE, BSE जो भी stock exchange है उन सबको regulate करता है ये. क्यों? How it regulates? It issues rules and regulations to be followed by issuer, यानी companies को क्या rules follow करने हैं, brokers को क्या rules follow करने हैं और investors को क्या rules follow करने. In short, first to end सबके लिए रूल्स बनाता है सेबी. When was it established? In 1992 under what act? Securities and Exchange Board of India Act. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है?
मुंबई। हेडक्वार्टर्स यानी रीजनल ऑफिसेस भी हैं, यस, काफी सारे इंडिया में एट वेरियस प्लेसेस इसके हेड ऑफिस और इसके रीजनल ऑफिस और ब्रांचेस सिचुएटेड है, बट हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई। सो दिस इज अ जनरल स्नैपशॉट अबाउट सेबी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी के 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग, PPR, दिस इज हाउ आई रिमेंबर। फिर से बोलते हैं, PPR, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटिंग। प्रमोट किसको करना? सिक्योरिटीज मार्केट को, कि भैया आओ शेयर्स खरीदो बेचो, इन्वेस्टमेंट्स खरीदो बेचो। प्रोटेक्ट करना, अगर इन्वेस्टर्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आप किसी को बुला रहे हो अपने घर में तो उनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड रेगुलेट करना, पूरे मार्केट पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस, स्ट्रिक्ट ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी है। सो आई होप आई एम क्लियर विद 3 ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटिंग। फिर से एक बार बोलेंगे सब, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटिंग। प्रमोटिंग मार्केट, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, रेगुलेटिंग पूरा मार्केट, ठीक है। ओके, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये है फंक्शंस ऑफ सेबी, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट, प्रमोट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, राइट। प्रोटेक्ट क्या करना? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। प्रमोट किसको करना? सिक्योरिटीज के मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। जब सब कुछ अच्छा फेयर होगा, सो ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू इन्वेस्ट, सो उसको ऑटोमेटिकली प्रमोशन होगा। रेगुलेट करना, कि वहां पूरे बिजनेस को देखना, रेगुलेट करना। इन्वेस्टर्स के एजुकेशन को प्रमोट करना। इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू, IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये एक ऐसा फंड है जो सेबी यूज करती है टू प्रमोट द इन्वेस्टर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर्स को गलत मानते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो भैया उनको समझाना कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और स्टॉक मार्केट इज नॉट रॉन्ग, ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू इन्वेस्ट, when to invest and where to invest, right? So ये WH questions of stock market के बारे में लोगों को educate करने का भी जिम्मा function stock market का है। prohibit करना, मना करना, रोकना, किसी को भी उस मार्केट में, मेरे घर में कुछ भी गलत नहीं चलेगा, सो मेरे यहाँ पर कोई भी फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होगा, इसका जिम्मा है सेबी का। मेरे यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगा, सो ये भी जिम्मा है सेबी का, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपकी टेक्स्ट बुक्स में 4 to 5 पॉइंट्स में इस पॉइंट को कवर किया है, बट फॉर योर ईज I have tried to club it and I have tried to make it easy for you to remember. Point क्या है? To register and regulate working of following. इन सबको स्टॉक मार्केट में कैसे रजिस्टर करना, इसकी जिम्मेदारी सेबी की है, और उनके वर्किंग को देखना, ध्यान से मॉनिटर करना, उसकी जिम्मेदारी भी है सेबी की। अब ये लोग कौन हैं? स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं वो सब चिपका दो। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, म्यूचुअल फंड, जिसमें से कोई भी 7-8 नाम याद रख लो, इन सब के रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन को भी सेबी देखता है। सो with this we end up finally, yes, we end up with this chapter class. Questions of this chapter are features of stock exchange, functions of stock exchange, short note on NSE, short note on BSE and short note on SEBI. अब SEBI के ऊपर या शॉर्ट नोट आए या फंक्शंस आए,
आपको ये पूरा लिखना है, जो भी हमने देखा कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या और उसके फंक्शंस क्या है। सो सेबी के बारे में अगर इस चैप्टर से या एग्जाम में सेबी के बारे में कुछ भी आएगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द इंट्रोडक्शन, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस। चाहे फंक्शन हो तो भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, शॉर्ट नोट हो तो भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। सो आई होप आई tried to justify with what I could explain you to the best I can. Still, if you have any doubts, do ask me so that we can move ahead without piling up any doubts in our mind. That's all for the day. Have a good day. Take care. Bye-bye.